Welcome to VLearn Networks. This is subject Computer Organization and Assembly Language Programming, session number 9, and today we will cover the subject and the topic is Instruction Set Architecture. Topic today we will cover are Instruction Set Characteristics, Instruction Set Design Considerations, Operand Data Types, Types of Instruction, Number of addresses in an instruction, addressing schemes, instruction set and format design issues, example of instruction format, instruction set characteristics. The key role of the Central Processing Unit or CPU is to perform the calculations, to issue the commands, to coordinate all other hardware components and executing programs including operating system, application programs etc. on your computer. मीन्स जो हमारा की रोल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का और या फिर हमारे सीपीयू का, वो ये होता है कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, कमांड्स को इशू करना, हर हार्डवेयर डिवाइस के साथ में कोऑर्डिनेट करना, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हमारे कंप्यूटर पे. द वर्ड ऑफ मशीन लैंग्वेज आर नोन एज इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स सिंटेक्स इज नोन एज इंस्ट्रक्शन सेट. जो मशीन लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं हम उनसे इंस्ट्रक्शंस कहते हैं और जो हमारा सिंटेक्स होता है इन इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करने का उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं. इंस्ट्रक्शन सेट व्यू पॉइंट्स. Instruction set is boundary where the computer designer and the computer programmer see the same computer from the different viewpoints. जो हमारा instruction set होता है उसकी जो boundary होती है कंप्यूटर डिजाइनर सेट करता है और जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो एक कंप्यूटर को बहुत सारे व्यू पॉइंट से देखता है. The computer instruction set provided a functional description of a processor, that is a detailed list of instructions that a processor is capable of processing, and a description of types, locations, access methods of operands. जो हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो एक फंक्शनल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को, जो कि इन कुछ डिटेल्स का बना होता है. पहली चीज होती है डिटेल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर कैपेबल होता है प्रोसेस करने के लिए, और दूसरा होता है डेटा टाइप्स की, उनकी लोकेशंस की और उनके एक्सेस मेथड की डिस्क्रिप्शन की. The common goal of computer designer is to build the hardware for implementing the machine's instruction for computer. जो हमारा कॉमन गोल होता है कंप्यूटर डिजाइनर्स के लिए वो होता है कि एक हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन बिल्ड करे मशीन इंस्ट्रक्शन को रन करवाने के लिए किसी सीपीयू में. From the programmer's point of view, the user must understand machine or assembly level language for lower level programming. जो हमारा प्रोग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि यूजर को मशीन लेवल या असेंबली लेवल लैंग्वेज समझ आए किसी लोअर लेवल प्रोग्रामिंग के लिए. Moreover, the user must be aware of register set, instruction type and the function that each instruction perform. और यूजर को ये भी पता होना चाहिए कि रजिस्टर सेट, इंस्ट्रक्शन के टाइप्स और उनके फंक्शंस क्या इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेंगे. What is instruction set? Instruction set is the collection of machine language instructions that a particular processor understands and execute. Instruction set वो collection होता है machine language के instructions का जो एक particular processor समझता है और उसको execute करता है. Instruction set can be of different formats और ये format include करते हैं the instruction length, the type, length and position of operation codes in an instruction and the number and length of the operand addresses. जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं और वो फॉर्मेट्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होगी, इंस्ट्रक्शन का टाइप क्या होगा, उस लेंथ की और पोजीशन की क्या होंगे ऑपरेशन कोड्स और नंबर ऑफ लेंथ एंड ऑफ द ऑपरेंड एड्रेसेस, और जो ऑपरेंड का एड्रेस होगा उसके कितने नंबर्स होंगे और कितनी लेंथ होगी. A set of assembly language mnemonic represent the machine code of a particular computer. जो हमारा सेट है assembly language mnemonics का वो एक मशीन कोड के
न्यूमेरिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। Therefore, if we define all the instructions of a computer, we can say we have defined the instruction set. इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन सेट को डिफाइन किया गया है। What are the elements of an instruction? इंस्ट्रक्शन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू कम्युनिकेट टू सीपीयू व्हाट टू डू. इट रिक्वायर्स अ मिनिमम सेट ऑफ कम्युनिकेशन एज व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म एंड ऑन व्हाट ऑपरेंड्स. जो हमारा पर्पस होता है इंस्ट्रक्शन का, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस का पर्पस होता है वो ये होता है कि सीपीयू के साथ में कैसे कम्युनिकेट करे कि वो जो हमारा सीपीयू है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करे. इसके लिए जो मिनिमम सेट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जो दो चीजें चाहिए होती हैं वो ये चाहिए होती हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और किस पे होगा, किस ऑपरेंड पे होगा. Thus each instruction consists of several fields. इसलिए जो हमारी इंस्ट्रक्शन सेट है वो कुछ फील्ड्स की बनी होती हैं. The most common field found in instruction formats are, तो जो हमारी मोस्ट कॉमन फील्ड्स होती हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वो होती हैं ऑपकोड और ऑपरेंड्स. जो हमारे ऑपकोड होते हैं एन ऑपरेशन कोड field termed as opcode that specifies the operation to be performed. ऑपकोड की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशन कोड और ये डिफाइन करता है कि कौन सा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन सेट परफॉर्म करेगा. और दूसरा होता है ऑपरेंड, एन एड्रेस फील्ड ऑफ ऑपरेंड ऑन विच डेटा प्रोसेसिंग इज टू बी परफॉर्म. जो एड्रेस फील्ड होती है ऑपरेंड की वो बताती है किस डेटा प्रोसेसिंग पे हमारी परफॉर्मेंस होगी. An operand can reside in the memory or a processor register or can be incorporated within the operand field of instruction as an intermediate or immediate constant. जो हमारा operand होता है वो मेमोरी में रिसाइड करता है या प्रोसेसर रजिस्टर में रिसाइड करता है और incorporate किया जा सकता है operand field और उनकी इंस्ट्रक्शंस में. जो हमारा सैंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो दिया हुआ है. पहला होता है ऑपकोड, दूसरा होता है एड्रेसिंग मोड और तीसरा होता है ऑपरेंड और उसका एड्रेस. जो हमारा ऑपकोड होता है वो 6 बिट्स का होता है और इन जनरल वी विल हैव 2 raised to the power 6 equals to 32 ऑपरेशंस. जो हमारे ऑपकोड होते हैं वो 6 बाइट के होते हैं और इन ऑल वो 32 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन लेंथ के लिए, उसमें 6 बिट्स होते हैं. दूसरी चीज होती है देयर आर 2 बिट्स फॉर एड्रेसिंग मोड. जो हमारे एड्रेसिंग मोड होते हैं वो 2 बिट्स के होते हैं. देयरफॉर देयर आर 2 raised to the power 2 equals to 4 different addressing mode possible for this machine. इस मशीन के लिए जो ये मशीन यूज कर रही है इंस्ट्रक्शन सेट, उसके लिए ओवरऑल 4 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स हो सकते हैं. और जो हमारी लास्ट फील्ड होती है वो 24 बिट्स की होती है. Here is the operand or the address of the operand field. और यहाँ पे operand होता है या फिर address होता है किसी operand का. How is an instruction represented? हमारी इंस्ट्रक्शन कैसे रिप्रेजेंट होती है? इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ बिट. जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है वो एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स की बनी होती है. अ लेआउट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज टर्म्ड एज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. और जो लेआउट होता है इस इंस्ट्रक्शन का वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर प्राइमरीली मशीन डिपेंडेंट और ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं. A CPU instruction set can use many instruction formats at a time. जो हमारा CPU instruction set होता है वो बहुत सारे instruction format को एक टाइम पे enroll करता है अपने उसके लिए. Even the length of opcode varies in the same processor. और जो हमारे opcode की जो length हो सकती है, जो number of bit opcode use करता है वो एक processor के लिए भी different हो सकते हैं. However, we will not discuss such details. How many instructions in a computer? कितनी instructions होती हैं एक कंप्यूटर पे? A computer can have a large number of instructions and addressing mode. एक कंप्यूटर के पास में बहुत सारी instructions और उसके addressing modes हो सकते हैं. The older computer with the growth of integrated circuit technology have a very large and complex set of instructions. जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन सेट है आजकल के कंप्यूटर्स में वो भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स और हम इनको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स भी कहते हैं. शॉर्ट फॉर्म में CISC मीन CISC.
However, later it was found in the studies of program styles that many complex instructions forms are not used by the program. और हाल ही में ये देखा गया है, बाद में ये भी देखा गया था कि एक स्टडी में कि जो कुछ एड्रेसिंग मोड्स या कुछ फंक्शंस होते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिक कंप्यूटर यूज नहीं कर पाता. Instruction set design considerations. Some of the basic considerations of design include the selection of a set of data types. जो हमारी basic considerations होती हैं instruction set design के लिए वो होती है, पहला होता है उसका पार्ट वो होता है set of data types कि हम कौन से data types को यूज करेंगे. दूसरा होता है set of operations on those data types की उन data types पे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तीसरा होता है set of instruction formats की उन इंस्ट्रक्शन सेट्स का फॉर्मेट क्या होगा जो इंक्लूड करता है इश्यूज लाइक नंबर ऑफ एड्रेसेस, इंस्ट्रक्शन लेंथ एसेट्रा. चौथा होता है हमारा सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग डेटा इन मेमोरी. जो फोर्थ पॉइंट होता है वो ये होता है कि एड्रेसिंग के लिए कौन सी टेक्निक्स हम यूज करेंगे डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए. और पांचवा होता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स विच कैन बी रेफरेंस्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन एंड हाउ दे आर यूज्ड. फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है कि हमारे पास में कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे एक इंस्ट्रक्शन को रेफर करने के लिए और वो कैसे यूज किए जाएंगे. Operand data types. Operand is part of an instruction that specifies the address of the source or result or the data itself on which the processor is to operate. Operand वो पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का जो स्पेसिफाई करता है कि जो सोर्स का या रिजल्ट का एड्रेस कहाँ पे है या फिर डेटा का एड्रेस कहाँ पे है और प्रोसेसर उस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. ऑपरेंड टाइप यूजली गिव्स ऑपरेंड साइज इम्प्लिसिटली. जो ऑपरेंड का टाइप होता है वो बेसिकली उसका साइज प्रोवाइड करता है. इन जनरल ऑपरेंड डेटा टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग कैटेगरीज. और हम ऑपरेंड के डेटा टाइप्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो होते हैं एड्रेसेस, नंबर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, बाइनरी कोडेड. हमारा तीसरा ऑपरेंड डेटा टाइप होता है कैरेक्टर और चौथा होता है लॉजिकल. एड्रेसेस operand residing in memory are specified by their memory address and operands residing in the register are specified by register address. जो हमारे operand memory में reside करते हैं हम उन्हें memory addresses कहते हैं और जो हमारे operand registers में reside करते हैं हम उन्हें register address कहते हैं. Addresses provided in the instructions are operand references. जो addresses हमारे instructions में होते हैं उन्हें हम operand references कहते हैं. मीन्स कि operand ने एक address को store किया हुआ है. जो हमारा दूसरा डेटा टाइप होता है वो होता है नंबर्स. ऑल मशीन लैंग्वेज इंक्लूड न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. न्यूमेरिक डेटा यूजुअली यूज वन ऑफ थ्री रिप्रेजेंटेशंस. पहला होता है फ्लोटिंग पॉइंट, दूसरा होता है फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स और तीसरा होता है हमारा बाइनरी कोडेड. मींस जो हमारे नंबर्स होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट में होंगे. मींस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन जैसे कि 1 साइन बिट, 8 एक्सपोनेंट बिट, 23 मेंटेसा बिट्स. या फिर डबल प्रिसीजन भी हो सकता है जैसे कि 1 साइन बिट, 11 एक्सपोनेंट बिट्स एंड 52 मेंटेसा बिट्स. मीन्स जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं वो ई की टर्म्स में डिफाइन करे जा सकते हैं जैसे कि ई रेज टू द पावर 23 और 3 ई रेज टू द पावर 28. ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं. दो तरीके के होते हैं, सिंगल पॉइंट और डबल प्रिसीजन के लिए. फिक्स्ड पॉइंट नंबर होते हैं साइंड और अनसाइंड जो हमारे सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं. और तीसरा होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल. मींस हमारे बाइनरी नंबर्स या फिर हमारे जो बीसीडी डिजिट्स हैं वो. Most of the machine provides instruction for performing arithmetic operations on fixed point and floating point numbers. जो हमारी बहुत सारी machines होती हैं वो जो arithmetic operations perform करती है वो basically दो पे ही करते हैं. पहला होता है fixed point और दूसरा होता है floating point. Characters, a common form of data is text or character strings. Characters are represented in numeric forms, mostly in ASCII code. जो हमारा common form of data का होता है वो होता है या तो टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स. जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं और मोस्टली वो ASCII कोड में होते हैं. मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. Another code used to encode characters is the extended binary coded decimal interchange code. Means EBCDIC.
लॉजिकल डेटा, ये हमारा चौथा ऑपरेंड डेटा टाइप होता है। लॉजिकल डेटा, ईच वर्ड ऑफ बाइट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ डेटा when n bit data unit is considered as consisting of n 1 bit item of data which each item having the value 0 or 1 means जो हमारा हर वर्ड होता है या बाइट होता है उसे एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है एक डेटा की। मीन्स या तो उसकी वैल्यू इधर 0 होगी या 1 होगी, या फिर अगर हमारा जो लॉजिकल डेटा टाइप है वो बुलियन टाइप का है तो या तो उसकी वैल्यू होगी ट्रू फॉर बिट 1 और या फिर उसकी वैल्यू होगी फॉल्स फॉर बिट 0। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर द ट्रांसलेशंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। जो हमारी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है हाई लेवल लैंग्वेज कोड से मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स में। Thus, from this point of view, the machine instructions can be classified under the following categories. इसीलिए हम अपनी types of instructions को इन following categories में divide कर सकते हैं। पहला होता है data transfer instruction, means कि data का transfer कैसे होगा वो instructions define करेंगी। data processing unit की वो instructions जो data की processing define करेंगी। program control instructions, वो instructions जो program को कैसे control करना है वो होती हैं। और miscellaneous privileged means और कितनी और भी बाकी इंस्ट्रक्शंस जो नई इन कैटेगरीज में नहीं आती उसे हम miscellaneous privileged में रखते हैं। पहला हम पढ़ते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, means these instructions transfer data from one location in the computer to another location without changing in data content। जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो डेटा ट्रांसफर होता है और ये बताता है कि डेटा को हमें कंप्यूटर की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कैसे भेजना है या कैसे चेंज करना है विदाउट चेंजिंग इन एनी डेटा कंटेंट, ताकि डेटा में भी कोई चेंज ना आए। दिस इज द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर बिटवीन आर। जो मोस्ट कॉमन ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं प्रोसेसर रजिस्टर से मेमोरी में, कि हमारा डेटा प्रोसेसर रजिस्टर से मेमोरी में जा रहा है। दूसरा होता है प्रोसेसर रजिस्टर से इनपुट आउटपुट बफर में या डिवाइस में जा रहा है, या फिर तीसरा होता है कि प्रोसेसर रजिस्टर से प्रोसेसर रजिस्टर में हमारा जा रहा है। These instructions need, इन इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास में कुछ चीजें होनी चाहिए, वो होती है लोकेशन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स। हमारे पास में लोकेशन होनी चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स के लिए। दूसरा होता है मोड ऑफ एड्रेसिंग फॉर ईच ऑपरेंड, और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है कि किस तरीके से हम उसको एड्रेस करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो होती हैं लोड, स्टोर, मूव, एक्सचेंज, क्लियर, सेट, पुश एंड पॉप। जो हमारे ऑपरेशंस के कुछ नाम है डेटा ट्रांसफर के लिए वो होता है लोड, कि डेटा को मेमोरी में लोड कर दो, स्टोर की डेटा को मेमोरी में स्टोर कर दो, मूव की एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हमारे डेटा को मूव कर दो, एक्सचेंज की दो रजिस्टर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को स्वैप कर दो, क्लियर मीन्स जो हमारे रजिस्टर में वैल्यू है वो क्लियर हो जाए, सेट की हमारा जो रजिस्टर है वो किसी एक वैल्यू पे सेट हो जाए, मीन्स जो उसकी वैल्यू है वो 1 हो जाए, और क्लियर के केस में जो उसकी रजिस्टर की वैल्यू है वो 0 हो जाए। पुश की हमारा कोई डेटा ट्रांसफर करे किसी स्टैक के टॉप पे, और पॉप जो हमारा डेटा को ट्रांसफर है किसी स्टैक के टॉप से रिमूव करना। डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, these instructions perform arithmetic and logical operations on data। ये इंस्ट्रक्शंस अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटा पे। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हम डेटा की इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस को 3 बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक, दूसरा होता है लॉजिक और तीसरा होता है शिफ्ट। शिफ्ट हमारे 3 तरह के होते हैं, पहला होता है लॉजिकल, दूसरा होता है अर्थमेटिक और तीसरा होता है सर्कुलर। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन 4 बेसिक तरह की होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। The other possible operations include a variety of single operand instructions, for example absolute, negative, increment, decrement। लॉजिकल, जो हमारे लॉजिकल डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो होते हैं एंड, और, नॉट एंड XOR operates on binary data stored in register। For example, if 2 registers contain the data
1011 एंड 1111, तो जो उनका एंड होगा वो होगा 1011, क्या, ताकि हम उसको एंड कर दे। एंड जो लॉजिकल हमारा एंड होता है बाइनरी डिजिट्स के लिए, सिंपल हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही हमारा शिफ्ट ऑपरेशन होता है। शिफ्ट ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ बिट्स इधर टू लेफ्ट और द राइट साइड। जो हमारा शिफ्ट ऑपरेशन होता है वो ये होता है कि हम अपने बिट्स को एक एक बिट आगे लेफ्ट में या एक एक बिट राइट में शिफ्ट करें। तीन तरीके से कर सकते हैं हम। पहला होता है लॉजिकल शिफ्ट, जहां पे हम इंसर्ट करते हैं एक जीरो को, अगर हमारी वैल्यू जो है वो राइट में शिफ्ट हो रही है, और जीरो को बेसिकली जो हमारा लॉजिकल शिफ्ट होता है वो होता है कि जीरो को इंसर्ट करना। जो हमारा अर्थमेटिक शिफ्ट होता है मींस कि हम इंसर्ट करेंगे 1 को, और जो हमारा सर्कुलर शिफ्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी लास्ट की वैल्यू, अगर हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी जो लास्ट की वैल्यू होती है लेफ्ट में, उसे हम राइट पे प्लेस कर देते हैं, और अगर हमारा जो शिफ्ट हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो जो हमारी वैल्यू है राइट में, जो राइट बिट है हम उसको प्लेस कर देंगे सबसे आगे वाले लेफ्ट में। Program control instructions. These instructions specify conditions for altering the sequence of program execution, or in other words the content of program counter register. जो हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये स्पेसिफाई करती हैं कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, या फिर बेसिकली जो इसका काम होता है वो ये होता है कि प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है उसको चेंज करे। इसके एग्जांपल्स हैं ब्रांच और जंप इंस्ट्रक्शन। PC points to the memory location that holds the next instruction to be executed. PC वो पॉइंट होता है मेमोरी लोकेशन पे जो होल्ड करता है कि कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करे। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ PC एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस लाइक ब्रांच और जंप कॉजेज अ ब्रेक इन द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मींस अगर हम अपने प्रोग्राम काउंटर पे एक ब्रांच या जंप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इसका मतलब होता है जो सीक्वेंशियल ऑर्डर चल रहा है हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का वो अनकंटिन्यूअस हो जाता है। ब्रांच और जंप में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल, जो हमारी ब्रांच और जंप इंस्ट्रक्शन होती है वो कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती है। जंप जो होती है हमारी अनकंडीशनल ब्रांच होती है टू इंप्लीमेंट सिंपल लूप्स की, सिंपल लूप्स लगाने के लिए। मींस अगर हमारे पास में एक जंप इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हमारा वैल्यू स्टोर है 1001 जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है, तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है हमारे पास में 1001 ये उस लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशंस पे हमारे प्रोग्राम काउंटर को जंप करवा देगा, और उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी जैसे कि वो है MBR गोइंग टू 0, ये इंस्ट्रक्शन दोबारा से हमारी रन करने लग जाएगी। ऐसे ही ब्रेक कंडीशन होती है। अगर हमारे पास में ब्रेक कंडीशन है और उसके बाद में हमारे पास में लिखा है 1007 तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके ऊपर वाली जो इंस्ट्रक्शंस है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएंगी एग्जीक्यूट करना, और जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो जंप कर जाएगा सीधे 1007 लोकेशन पे। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन कंसिडरेशंस। अगेन जो हमारा टॉपिक है वो है सम बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द ऑपरेंड्स कैन बी ऑपरेटेड इन मेमोरी रजिस्टर्स और इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं वो एड्रेस होते हैं मेमोरी में, रजिस्टर्स में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। जो दूसरी चीज होती है हमारे पास में वो होती है इंस्ट्रक्शंस हैविंग लेस नंबर ऑफ ऑपरेंड एड्रेसेस इन एन इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर लेसर बिट्स इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ ऑपरेंड एड्रेसेस इन एन इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर लेसर बिट इन द इंस्ट्रक्शन। Most of the instruction do not require more than 3 operand addresses। जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें ऑपरेंड एड्रेसेस की जरूरत नहीं होती, 3 से ज्यादा ऑपरेंड एड्रेसेस की जरूरत नहीं होती। चौथा होता है टाइप ऑफ इंटरनल स्टोरेज ऑफ ऑपरेंड। जो चौथा होता है वो किस तरह के ऑपरेंड को यूज कर रहे हैं इंटरनल स्टोरेज के लिए, वो ये बताता है। The 3 most common type of ISAs are, जो 3 मोस्ट कॉमन तरीके होते हैं IAS के मींस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के, वो होते हैं एवोल्यूशन स्टैक मींस द ऑपरेंड आर इम्प्लिसिटली ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। जो हमारे
ऑपरेंड्स होते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक होते हैं. एक्यूमुलेटिंग वन ऑपरेंड इज इम्प्लिसिटली द एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर होता है जहां पे हमारा रिजल्ट स्टोर होता है. ये एक पर्टिकुलर ही, ये सिर्फ एक अलग रजिस्टर होता है जो कि किसी और मेमोरी रजिस्टर से इंक्लूड नहीं करता, और बाकी सारे जो रजिस्टर्स बचते हैं वो होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, मींस जीपीआर. ऑल द ऑपरेंड्स आर एक्सप्लिसिट इधर रजिस्टर और द मेमोरी लोकेशंस. यहाँ पे हमारे सारे रजिस्टर्स होते हैं या फिर जो हमारी मेमोरी लोकेशंस होती है वो जनरल पर्पस रजिस्टर की कैटेगरी में आती है. एवोल्यूशन स्टैक आर्किटेक्चर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो इंप्लीमेंट करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी को. यू कुड add an entry to the stack with a push and remove an entry from the stack with a pop operation. जो हमारे स्टैक में एंट्री हम इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू पुश वैल्यू, और हम जो एंट्री रिमूव कर सकते हैं एक स्टैक से वो होती है पॉप यूज करके. जो हमारा पहला डायग्राम दिया हुआ है पहली साइड पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है वो है पुश ए, पुश बी, एड पॉप सी. मींस जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जो हमारे रजिस्टर की ए की वैल्यू है वो उसे पुश करे, रजिस्टर बी की वैल्यू पुश करे, उन दोनों रजिस्टर्स को ऐड करवा के जो वैल्यू आती है उसको पॉप कर दे रजिस्टर सी में. द स्टैक आर्किटेक्चर के प्रोन्स और कॉन्स जो होते हैं वो होते हैं कि स्मॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए ही यूज करे जाते हैं. दूसरा, कंपाइलर इज इजी टू राइट, कंपाइलर पे लिख सकता है इजीली. लॉट्स ऑफ मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड, बहुत सारी मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है, तो इससे जो मशीन की परफॉर्मेंस होती है वो भी पुअर हो जाती है. एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर, जो हमारा एक्यूमुलेटर का आर्किटेक्चर होता है वो कैसे होता है. Accumulator is a specially designed register that supplies one instruction operand and receives the result. Accumulator वो specially designed register होता है जो कि एक instruction किसी ऑपरेंड का रन करवाता है, सप्लाई करता है, और ये रिजल्ट को अपने अंदर रिसीव करता है. The instruction such machines are normally one address instructions. और जो instructions होंगी simply one address instructions होंगी, जैसे कि, और ये आर्किटेक्चर बहुत सारे पीसीज में यूज हुआ है जैसे कि IBM 7090 और DEC PDP-8 में. एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर के प्रोन्स और कॉन्स हैं. इम्प्लिसिट यूज ऑफ एक्यूमुलेटर सेव्स इंस्ट्रक्शन बिट, कि जो इम्प्लिसिट यूज होता है आर्किटेक्चर का वो इंस्ट्रक्शन बिट्स को बचाता है. रिजल्ट इज रेडी फॉर इमीडिएट रीयूज, जो रिजल्ट होता है वो हमारा इमीडिएट रीयूज के लिए होता है. मेमोरी एड्रेस, मोर मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड देन स्टैक, जो हमारा मेमोरी एक्सेस है वो बहुत ज्यादा होता है यूटिलाइज स्टैक के लिए. जनरल पर्पस रजिस्टर्स, अ रजिस्टर इज अ वर्ड ऑफ इंटरनल मेमोरी लाइक एक्यूमुलेटर. रजिस्टर एक वर्ड होता है इंटरनल मेमोरी में जैसे कि एक एक्यूमुलेटर होता है हमारा. ये जो आर्किटेक्चर होता है वो एक्सटेंशन होता है एक्यूमुलेटर आइडिया के लिए. यूजेस अ सेट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर विच मस्ट बी एक्सप्लिसिटली नेम्ड बाय इंस्ट्रक्शंस. और इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स को यूज करने के लिए हमें उन रजिस्टर्स का नाम भी देना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस के साथ. Registers can be used for anything, either holding operands for operations or temporary intermediate values. जो हमारे instructions होते हैं registers के वो यूज करते हैं temporary intermediate values को भी. एग्जाम्पल, हम अगर हमें c इक्वल्स टू a प्लस बी का प्रोग्राम लिखना है फॉर मेमोरी तो हमें उसकी वो मेमोरी देनी पड़ेगी लोड R1 A, जो हमें लोड करना है A को रजिस्टर R1 में, ऐड करना है B को रजिस्टर R1 में और स्टोर करना है R1 की वैल्यू को C में. जो इसका मतलब जो हमारा A है, जो हमारा वैल्यू है A, उसको हम रजिस्टर R1 में लोड करवाएंगे पहले, फिर जो R1 में वैल्यू है उसको ऐड करवाएंगे वैल्यू B के साथ में, और जो स्टोर करवा रहे हैं जो R1 में वैल्यू I है उसको हम स्टोर करवा रहे हैं C डेटा टाइप में. जनरल पर्पस रजिस्टर के प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं. जनरल पर्पस रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल्स एज इट रिड्यूस मेमोरी ट्रैफिक. दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन मस्ट इंक्लूड बिट्स टू स्पेसिफाई विच रजिस्टर टू ऑपरेट. तीसरा होता है मेमोरी एक्सेस कैन बी मिनिमाइज्ड, और चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लिकेटेड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्रेसिंग स्कीम. मीन्स द टर्म एड्रेसिंग स्कीम रेफर्स टू द मैकेनिज्म एम्प्लॉयड फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेंड्स. जो हमारा टर्म होता है मेमोरी स्कीम वो ये मैकेनिज्म एम्प्लॉय करता है कि ऑपरेंड्स को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे.
देयर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ एड्रेसिंग स्कीम एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, बहुत सारे मल्टीट्यूड होते हैं एड्रेसिंग स्कीम्स के। कुछ उसमें से एड्रेसिंग मोड्स हैं इमीडिएट, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, स्टैक एड्रेसिंग। जो हमारा मेमोरी रेफरेंस होता है वो दो तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रजिस्टर रेफरेंस भी हमारे दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग होती है वो थ्रू होती है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, बेस एड्रेसिंग एंड रिलेटिव एड्रेसिंग। पहले जो हमारी एड्रेसिंग स्कीम आती है वो आती है इमीडिएट, व्हेन एन ऑपरेंड इज इंटरप्रेटेड एज एन इंटरमीडिएट वैल्यू। एग्जांपल, लोड इमीडिएट 7, इट इज एक्चुअली वैल्यू 7 दैट इज पुट इन द सीपीयू रजिस्टर। मींस जो हमारा ऑपरेंड है इसका वो इंटरप्रेट करता है इमीडिएट वैल्यू को। मींस अगर हम लिखते हैं लोड इमीडिएट 7 तो वो डायरेक्टली 7 को इमीडिएट रजिस्टर में स्टोर करवा देगा। इमीडिएट यहाँ पे एक रजिस्टर है, जैसे पीछे वाले इंस्ट्रक्शंस में R1 था, एक जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर करवा देगा डायरेक्टली जो वैल्यू है हमारी 7 को। In this mode, the operand is the data in operand address field of the instruction. हमारी इस मोड में जो ऑपरेंड होता है वो डायरेक्टली डेटा होता है और इसी को हम फील्ड ऑफ ऑपरेशन में भेजते हैं। डायग्राम शो कर रहा है मेन मेमोरी में कि जो हमारा एक ऑपकोड है वो है लोड, जो हमारा एड्रेसिंग मोड है वो है इमीडिएट और जो हमारा ऑपरेंड वैल्यू है वो है 7। डायरेक्ट एड्रेसिंग, the operand field of the instruction specify the direct addresses of the intent operand. Example, if the instruction load 500 uses the direct addressing, then it will result in the loading the content of memory cell 500 into the CPU register. Means जो हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वो ये है कि जो हमारा वैल्यू है D मीन्स एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट, और जो हमारी वैल्यू है ऑपरेंड की वो बताती है एक एड्रेस की जो हमारी वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर है। मीन्स अगर हमारा वैल्यू है 500 तो जो वो 500 है वो एक मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है जैसे कि 011 वो लोड कर दिया जाएगा इन द रजिस्टर। मीन्स जो वैल्यू लोड होगी रजिस्टर में वो होगी 0111। Indirect addressing, the operand field of the instruction specifies the addresses of the intended operands. Means जो हमारा operand field है इंस्ट्रक्शन का वो स्पेसिफाई करता है addresses of intended operands. मीन्स जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इनडायरेक्टली लोड होंगी। मीन्स लोड I500 क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा लोड है वो हमारा ऑपकोड है, I हमारा बता रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और 500 एक वो लोकेशन है जहाँ पे एक और मेमोरी लोकेशन स्टोर है और उस मेमोरी लोकेशन पे हमारी वैल्यू है। मीन्स जो हमारा 500 है उसके अंदर एक वैल्यू है 50A। 50A एक हमारी दूसरी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर है। मींस हमारी जो वैल्यू है 0111 वो पहले 50A में जाएगी और 50A से वैल्यू हमारी 500 में जाएगी और इसी तरह से हमारी जो वैल्यू है लोड होगी इनडायरेक्टली। रजिस्टर एड्रेसिंग स्कीम means when operands are taken from registers implicitly or explicitly, it is called register addressing. means जो हमारा ऑपरेंड है वो एक रजिस्टर लेगा implicitly या explicitly, उसे हम रजिस्टर एड्रेसिंग की कहते हैं। These operands are called register operands. इन ऑपरेंड्स को हम रजिस्टर ऑपरेंड्स कहते हैं। If the operands are from memory location, they are called memory operands. अगर जो हमारे ऑपरेंड्स है वो मेमोरी लोकेशंस हैं तो हम उसे मेमोरी ऑपरेंड्स कहेंगे। इसके लिए जो हमारे पास में स्कीम है वो है कि जो हमारा ऑपकोड है वो बताता है कि किस रजिस्टर से हमें ऑपरेंड को उठाना है। पहली इंस्ट्रक्शन होती है हमारी ऑपकोड और दूसरी होती है रजिस्टर का एड्रेस। उस रजिस्टर के एड्रेस पे कहाँ पे हमारा ऑपरेंड स्टोर है वहां से हमारी वैल्यू उठाई जाएगी फॉर द इंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मींस द ऑपरेंड फील्ड स्पेसिफाइज द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। मींस जो हमारा ऑपरेंड फील्ड होता है वो स्पेसिफाई करता है एक रजिस्टर को जहां पे हमारा एड्रेस स्टोर है और उस ऑपरेंड वो बताता है कि उस ऑपरेंड की मेमोरी में कहाँ लोकेशन है। मींस ये एक इनडायरेक्ट है, ये एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह ही है। यहाँ पे रजिस्टर यूजर है मींस हमारे पास में एक
कमांड है लोड इनडायरेक्ट रजिस्टर और वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 500, तो वो 500 बताएगा कि किस रजिस्टर में ऑपरेंड स्टोर है और उस रजिस्टर में जो ऑपरेंड की वैल्यू होगी वो बताएगा कि कौन से रजिस्टर में हमारा डेटा स्टोर है। तो जो डेटा हमारा स्टोर है वो पहले हमारे इस रजिस्टर में आएगा जहां पे हमारा ऑपरेंड स्टोर था और फिर उसकी वैल्यू हमारे इंस्ट्रक्शन में जाएगी। ये हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, indexed addressing mode, the operand field of the instruction contains an address and index register which contains an offset। जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है एड्रेस, जो हमारा ऑपरेंड फील्ड होता है वो इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है कि एड्रेस कंटेन करता है और एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर कंटेन करता है जो जिसके पास में एक ऑफसेट होता है। हम उस ऑफसेट वैल्यू को रजिस्टर एड्रेस में ऐड करते हैं और जो रजिस्टर वैल्यू आती है उस रजिस्टर वैल्यू पे हमारा जो डेटा आइटम होता है वो स्टोर होता है। अगर हम एग्जांपल ले तो वो ये है कि मूव AL BX प्लस ऐसे ही हमारा ऑफसेट है, मींस हमारा जो रजिस्टर है BX वहां की वैल्यू प्लस जो हमारा ऑफसेट बनता है ऑफसेट है उसको जो प्लस करके हमारी वैल्यू आएगी वहां पे हमारा वैल्यू डेटा स्टोर है और उसे हमें मूव करवाना है लोकेशन AL में, मींस लोअर लेवल ऑफ एक्यूमुलेटर। Base register addressing, the content of instruction specified base register is added to the displacement field or address field of the instruction, means जो हमारा एड्रेस का ऑपरेंड में जो एड्रेस स्टोर किया गया है उसे हम बेस रजिस्टर की वैल्यू से ऐड करवाएंगे और जो हमारे पास में एड्रेस आएगा उसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। इसका डायग्राम दे रखा है कि हमारे पास में एक वैल्यू लोकेशन दे रखी है 40 और हमारे ऑपकोड दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बेस रजिस्टर में 4000। तो जो हमारा रजिस्टर R2 है तो हम उस मेमोरी लोकेशन को प्लस कर देंगे, मींस जो हमारे पास में आई वैल्यू वो आई 4040 इस लोकेशन मेमोरी लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर होगा। रिलेटिव एड्रेसिंग स्कीम, द रजिस्टर R इज द प्रोग्राम काउंटर containing the address of the current instruction being executed. The operand field A contains the displacement of an instruction or data with respect to the current instruction। जो हमारा रजिस्टर R है वो एक प्रोग्राम काउंटर होता है जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। द ऑपरेंड फील्ड A जो है वो कंटेन करता है डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है किसी इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो रिलेटिव एड्रेस आएगा उधर हमारा डेटा स्टोर होगा। इस एड्रेसिंग स्कीम की एडवांटेज होती है कि अगर हमारी मेमोरी रेफरेंस पास में है टू द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, हमारा ऑपरेंड है वो हमारा ऑपकोड पहला ऑपकोड स्पेसिफाई करता है, वो रजिस्टर बताता है, रजिस्टर की लोकेशन बताता है, एड्रेस बताता है। जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें प्लस हो जाएगा वो एड्रेस और जो मेमोरी लोकेशन आएगी वहां पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी। Stack addressing, the operand is implicit as top of stack, it is not explicit but implied। जो हमारा ऑपरेंड होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक होता है, उसकी वैल्यू हम सीधे डायरेक्टर स्टैक पॉइंट से उठाएंगे, सीपीयू में लोड करेंगे किसी रजिस्टर में और जो वैल्यू वो देगा वहां से हम वैल्यू को उठाएंगे, उस डेटा को उठाएंगे और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। The stack pointer points to the top of stack, that is to the memory location where the last value was pushed। इंस्ट्रक्शन सेट एंड फॉर्मेट डिजाइन इश्यूज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सम बेसिक इश्यूज कंसर्न फॉर द इंस्ट्रक्शन सेट आर डिजाइन completeness, means the primary concern is that the instruction set should be complete, which means there is no missing functionality। means हमारे जो instruction set होता है वो complete होना चाहिए अपने आप में और कोई ऐसे instruction नहीं होनी चाहिए जो इसकी functionality को मिस कर दे। ऑर्थोगोनल means ये secondary concern होता है किसी instruction set के लिए, इसका मतलब कि हमारे पास में कोई unnecessarily redundant property नहीं होनी चाहिए। means अगर हमारे पास में मूव ऑपरेशन है तो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए जो कि सेम मूव ऑपरेशन परफॉर्म करती हो किसी और लैंग्वेज में। An instruction format is used to define the layout of the bits allocated to these elements of the instruction। Instruction format एक वो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है जो बताता है कि बिट्स का लेआउट कैसा होगा किसी इंस्ट्रक्शन के एलिमेंट के लिए। Instruction length is significant
because it signifies the basic issue of the format design. It determines the richness and flexibility of a machine. ये बेसिक इश्यू होता है फॉर्मेट डिजाइन के लिए और ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारा रिचनेस है और फ्लेक्सिबिलिटी है किसी मशीन की वो कितनी है. बेसिक ट्रेड ऑफ smaller instruction versus desired for more powerful instruction reappropriated. जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्मॉल स्पेस कवर करें वर्सेस जो हमारी जो पावरफुल डिजाइन मशीन है वो कैसे आए. नॉर्मली प्रोग्रामर डिजायर्स, जो हमारे प्रोग्रामर हैं उन्हें क्या चाहिए, मोर ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स एज इट रिजल्ट इन स्मॉलर प्रोग्राम, कि बहुत सारे ऑपकोड और ऑपरेंड्स हो ताकि जो हमारा प्रोग्राम का साइज है वो भी छोटा हो जाए. मोर एड्रेसिंग मोड्स for greater flexibility in implementing functions like table manipulations and multiple branching. जो हमारा एड्रेसिंग मोड्स हो वो भी बहुत सारे हो ताकि एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके इंप्लीमेंट करने के लिए किसी डेटा मैनिपुलेशन के लिए या फिर ब्रांचिंग को बहुत टाइप्स में डिवाइड करने के लिए. Factors which must be considered for deciding about instruction length are, जो इंस्ट्रक्शन सेट के डिफाइन करते हैं इंस्ट्रक्शन की लेंथ को, वो होता है मेमोरी का साइज, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी का ट्रांसफर लेंथ और मेमोरी की ट्रांसफर. एलोकेशन ऑफ बिट्स, हम बिट्स को कैसे एलोकेट करवाएंगे ऑपकोड और ऑपरेंड के लिए. द ट्रेड ऑफ हेयर इज बिटवीन द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ ऑपकोड वर्सेस द एड्रेसिंग कैपेबिलिटी. जो यहाँ पे बेसिक ट्रेड ऑफ होता है वो नंबर ऑफ बिट्स और ऑपकोड्स के बीच में होता है. सम ऑफ दीज फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एड्रेसिंग बिट्स आर, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स के कितने एड्रेसिंग मोड यूज कर रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने ऑपरेंड्स है एक टाइम पे, रजिस्टर एड्रेसिंग वर्सेस मेमोरी एड्रेसिंग, मींस कि वो एट अ टाइम रजिस्टर एड्रेसिंग को यूज करेगा या मेमोरी एड्रेसिंग को यूज करेगा. ग्रेनुलैरिटी होती है एड्रेस के एक्सेस के लिए, वो है बताती है एज फार एज मेमोरी रेफरेंस आर कंसर्न, ग्रेनुलैरिटी इंप्लाइज वेदर एन एड्रेस इज रेफरेंसिंग अ बाइट और वर्ड एट अ टाइम, मींस जो हमारा एड्रेस है वो एक बाइट का होगा या एक वर्ड का होगा. वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द डिजाइनर came up with the idea of having variety of instruction formats of different length, कि जो हमारे डिजाइनर्स है वो एक आइडिया के लेके आए कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उनको हम डिफरेंट लेंथ का रखें. इस स्कीम के ये एडवांटेजेस होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैन बी प्रोवाइडेड विच हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट तरह की लेंथ को प्रोवाइड करें. Flexibility in addressing scheme can be provided efficiently and compactability. जो flexibility होती है addressing scheme में वो भी efficiently और compactly provide हो. Example of instruction format, हम एक instruction set का example लेते हैं, वो होता है MIPS means microprocessor without interlocked pipeline stages. हम एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं MIPS, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस. ये 5 स्टेप्स को डिफाइन करते हैं एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस के लिए और ओवरलैप फंक्शंस में परफॉर्म कर सकते हैं. द फर्स्ट कमर्शियल MIPS CPU model has 32 bits register and its instructions are 32 bit long. जो हमारा फर्स्ट कमर्शियल MIPS CPU मॉडल था उसकी 32 बिट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन सेट था. जो पहला डिफाइन करता था वो था ऑपकोड जो कि 6 बाइट का होता था. जो RS था वो हमारा पहला सोर्स ऑपरेंड था. जो RT था वो हमारा डेस्टिनेशन सेकंड सोर्स ऑपरेंड था. जो RD था वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर था. शैम्प जो हमारा था वो था यूज किया जाता था शिफ्ट ऑपरेशन के लिए. और फंक्शन T ये फील्ड सेलेक्ट करता था किसी स्पेसिफिक वेरिएंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. Instruction format, all MIPS instructions are of same size and are 32 bit long. जो हमारे जितने भी MIPS instruction set थे वो सेम साइज के होते थे और 30 बिट लॉन्ग के होते थे. द सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उसे हम I टाइप और I फॉर्मेट कहते थे और उसे डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता था. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ I टाइप इंस्ट्रक्शंस इज, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है I टाइप इंस्ट्रक्शंस का वो है 6 बिट का ऑपकोड होगा, 5 बिट का सोर्स
सोर्स रजिस्टर होगा, 5 बिट का सेकंड सोर्स रजिस्टर होगा और 16 बिट का एड्रेस होगा। जो MIPS में एड्रेसिंग मोड यूज होते थे वो होते थे यूज रजिस्टर एंड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स फॉर ऑपरेशन। रजिस्टर और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज होते थे और दूसरा होता था इमीडिएट एंड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड फॉर लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। और लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस के लिए हम इमीडिएट और डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड यूज करते थे। डू इट योरसेल्फ, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। और दूसरा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। थैंक यू फॉर द सेशन।